Okay, guys, we'll start now. So, welcome to the fifth session of FinFo. FinFo basically stands for Financial Information, and today is our fifth session. So, if you have missed the first four sessions, then you can still view the videos on YouTube. Our YouTube channel is Rotary Club of Thane Green City. So, please visit and watch the first four videos. In the last session, like we studied various tax slabs, and we studied that our gross income is taken into consideration, then we deduct the deductions, and then we get our net income, and we are taxed on our net income. So in today's session, we'll be learning the deduction part, like what are the various deductions available for salaried individuals. And today's session will be taken by none other than Rotractor Janmesh Gaikwad. He's the Sergeant at Arms for this year of Rotary Club of Thane Green City. So without further delay, I'll request Janmesh to take over and continue with the session. Thank you so much. Thank you, Omkar. So am I audible to everyone? Yes. Yes, Janmesh. Yes. So लास्ट सेशन श्रेयस ने लिया था. अभी मैं बताने जा रहा हूँ. इन डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक जनरल नॉलेज दूंगा कि what are the deductions of income tax. So basically स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ और शुरू करते. So these are the objectives of our session. So definition, what is definition of deduction, sections, quiz and queries. So without getting मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, we'll start with our deduction. What is definition of deduction? So basically deduction is salaried employees from the major chunk of the overall taxpayers in the country, and the contribution they make to the tax collection is quite significant. So income tax deductions offer me opportunity to saving tax for the salaried class. With the help of these deductions and exemption, one should gets liability the tax liability of that payer is reduced. So definition is in simple terms, deductions allowed under the income tax help you to reduce your taxable income. You can avail the deduction only if you have made tax saving investments or incurred eligible expenses. There are a number of deductions available under various sections that will bring down your taxable income. So basically deductions is the way to reduce your tax liability. So we are going to further get overview of how many sections and which sections plays important role. So we'll start with our sections. Section 24, section 20, section 16 IA, 80C, 80D, 80E, 80G and 80U. So we'll start section 24. Section 24 is calculated under income फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड. सो बेसिकली कैसे होता है कि मैंने होम लोन ले लिया है और वो होम लोन मैंने रेंट पे दिया है, तो जो की रेंट है उसका अगर हम लोग टोटल करेंगे ईयर में, और उसका जो 30% आएगा डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस, तो वो 30% जो स्टैंडर्ड टैक्सेशन है वो हम लोग को सेक्शन 24 में मिलेगा, और उसके साथ जो कि रेंट का हम लोग होम लोन पे करने में जो हम लोग को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे हम लोग को मिलेगा. सो और ये हुआ फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट ऐसे हुआ है कि हम लोग ने होम लोन ले लिया है, लेकिन हम लोग ने वो रेंट पे नहीं दिया और हम लोग खुद यूज कर रहे हैं फॉर आवर रेसिडेंस. तो उस टाइम पे हम लोग को ये 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं अवेल कर सकेंगे, और लिमिट ऑन इंटरेस्ट इज 2 लाख. तो ऐसा है सेक्शन 24. बाद में आते हैं अभी सेक्शन 16 IA में. ये ऐसा है कि गवर्नमेंट हम लोग को स्टैंडर्ड 50K दैट इज 50,000 का हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है. इन सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूंगा, इफ मेरा ग्रॉस सैलरी है 8 लाख, तो मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो मेरा नेट सैलरी हो जाएगा 7,50,000. सो बेसिकली ये कैसे होता था, लास्ट ईयर तक दिस लिमिट वाज 40K, but now it has increased to 50K. तो ये हुआ हमारा सेक्शन 24 एंड 16, सेक्शन 16. सो आते हैं अभी सेक्शन 80C में. तो 80C
is most important way of saving taxes. It allows taxpayer to reduce their taxable income by making investments and some expenses thus save on taxes they pay. So basically government हम लोग को बोलता है कि promote their इन्वेस्टमेंट प्लान्स, फिर अपने लाइफ के सेव लाइफ सिक्योर कैसे करनी है, फिर उसके बाद रिटायरमेंट प्लान कैसे करना है। तो ये सब जो फंड्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सेक्शन 80C के अंडर आता है। सो बेसिकली दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल है 80C के अंडर। लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग प्लान्स, प्रोविडेंट फंड, 5 years पोस्ट में अगर फिक्स डिपॉजिट किया 5 years के लिए वो, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग प्लान, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सो ऑन। बेसिकली यहाँ पे एक और चीज है, ट्यूशन फीस, वो भी हम लोग 80C के अंडर डिडक्ट होता है। सो और एक बात बताना चाहूंगा कि इसका जो लिमिट है वो है अप टू 1,50,000। अभी यहाँ पे अप टू का मीनिंग ऐसा है कि इफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट्स अंडर 80C अगर मेरा 1,70,000 है तो मुझे डिडक्शन जो है वो 1,50,000 तक ही मिलेगा। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का तो मुझे डिडक्शन 1 लाख का ही मिलेगा। तो इसका मतलब है अप टू 1,50,000 का जो भी डिडक्शन है वो 80C में आएगा। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। सो सेक्शन 80CCC, 80CCD and 80CCE। सो बेसिकली 80C स्टेट्स दैट इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम लोग पूरे ईयर में पे करते हैं, वो जो डिडक्शन है वो हम लोग जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका भी यहाँ पे 1,50,000 तक का हम लोग को डिडक्शन में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। फिर आएंगे हम लोग 80CCE में, क्योंकि मैं पहले 80CCE बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे 80C में CCE में ये है कि सेक्शन 80C, CCC, CCD और ये तीनों को मिला के जो भी अपना टैक्सेबल डिडक्शन है वो 1,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली C प्लस CCD ये तीनों मिला के हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी आते हैं 80CCD में। तो CCD में क्या है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में कैसा है कि अगर हम लोग ने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया या फिर अलग और पेंशन स्कीम में अगर हम लोग ने डिपॉजिट किया वॉलेंटरी, मतलब एम्प्लॉयर और खुद का कंट्रीब्यूशन छोड़ के अलग से खुद से वॉलेंटरीली किया तो 50,000 मोर, मतलब 1,50,000 और 50,000 का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD और 80CCE। So we'll get to next slide now. हाँ, तो सेक्शन 80D इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम ये अगर लिया हम लोग ने तो उसका जो प्रीमियम है वो हम लोग को कैसे कितना लिमिट है और उसका एग्जेम्पशन कितना है ये मैं बताता हूँ आपको कि यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ ₹25 अंडर सेक्शन 80D ऑन इंश्योरेंस जो है वो हम लोग को इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के मतलब मेडिक्लेम फिर जो भी हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे कवर होंगे। जैसे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हम लोग ने प्रीमियम दे दिया, फिर मेडिकल फिर अभी कैसे रहता है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स ऑफ अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन ये हो गया तो वो भी 80D में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इन सेक्शन 80D अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर है तो उसका कोई भी एक्सपेंडिचर कैश में नहीं होगा, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड, चेक, डिमांड ड्राफ्ट यही हम लोग यूज करेंगे तो ही अगर हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे सेक्शन 80D के इसमें। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो 80 सेक्शन 80DD डिसेबल डिपेंडेंट, सेक्शन 80DDB
मेडिकल एक्सपेंडिचर, सेक्शन 80U फिजिकल डिसेबिलिटी। तो गाइस ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना इसमें। सेक्शन 80D डिसेबल डिपेंडेंट, तो यहाँ पे कैसे आप लोग को डिपेंडेंट तो मालूम है कि मतलब स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, या फिर सीनियर सिटीजन जो भी पेरेंट्स है अपने, वो हमारे यहाँ पे डिसेबल्ड हम लोग कंसिडर करेंगे। सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग एंड ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। तो ये है 80DD। यहाँ पे एक ऐसा है कि जो डिसेबिलिटी है वो हम लोग परसेंटेज में मेजर करेंगे। अगर 40 से लेके 80 तक का डिसेबिलिटी है, 40% से लेके 80% तक, तो हम लोग को 75K तक का डिडक्शन हम लोग अवेल कर सकते हैं। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है दैट इज मोर देन 80%, तो हम लोग 1,25,000 तक का डिडक्शन हमारा एलिजिबल है। सो सेक्शन 80DDB अभी आते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे ऐसा है, अ डिडक्शन ऑफ ₹40,000 इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। It is available with respect of any expenses incurred towards treatment of specified medical disease or ailment for himself or any of his dependent। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी स्पेसिफाइड डिजीज रहेगा, अगर वो रिलेटेड हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं और उसका मेडिक्लेम भी है, तो भी हम लोग को यहाँ पे 40K का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हम लोग जो क्लेम है उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये 40,000 का लिमिट। फिर आते हैं सेक्शन 80U के यू में, तो फिजिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि जो अगर टैक्स पेयर जो है, सैलरीड इंडिविजुअल जो है, अगर वही डिसेबल है तो यहाँ पे 80U का एलिजिबिलिटी उसका आता है। तो उसका ऐसा है कि अ डिडक्शन ऑफ ₹75,000 इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हु सफर्स फ्रॉम physical disability including blindness or mental retardation. In case of severe disability, one can claim deduction of ₹1,25,000। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, 75,000 40% से लेके 80% का डिसेबिलिटी रहेगा, तो और अबव 80% तो 1,25,000। तो ये हुआ सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB, 80U। सो नेक्स्ट स्लाइड। अभी आते हैं सेक्शन 80E और 80EE में। तो 80E एंड 80EE आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट। जैसे कि 80C हो गया कंट्रीब्यूशन का, 80D हो गया हेल्थ डॉक्टर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। फिर अभी 80E जो है वो इंटरेस्ट के अंडर है। तो हम लोग आते हैं अभी सेक्शन 80E और सेक्शन 80EE। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो a deduction is allowed to an individual for interest on loans taken for pursuing higher education. This loan may have been taken for the taxpayer spouse or children or for a student for whom the taxpayer is legal guardian। तो बेसिकली यहाँ पे हायर एजुकेशन का मतलब है 10+2, मतलब हम हमारे 12th के बाद जो भी हायर एजुकेशन परस्यू करेंगे उसके लिए जो लोन लेते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डिडक्शन ये सेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात जो है वो, अगर समझो कि मैंने लोन ले लिया 2020 में मेरे एजुकेशन के लिए, और वो 2 साल के बाद मेरा लोन का EMI मतलब 2 साल का मेरा कोर्स है और मैंने EMI जो कि इंटरेस्ट है वो 2023 से मैं चालू कर दूंगा अगर मेरा इंटरेस्ट भरना। तो वो 2023 विल बी माय इनिशियल असेसमेंट ईयर, वो हो गया 1 साल। और उसके बाद से जो 7 साल तक है, ऐसे में 7 साल और प्लस वो इनिशियल असेसमेंट ईयर, ऐसे टोटल 8 इयर्स में ये डिडक्शन अवेल कर दूंगा। सो बेसिकली ये एजुकेशन लोन जो इतना अच्छा ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग हायर स्टडीज के लिए मतलब परस्यू करे वो, इसलिए। इसमें एक और बात है कि अगर मेरा एजुकेशन लोन 7 साल के पहले ही खत्म हो जाता है, तो जो ईयर मेरा लास्ट, मतलब अगर 7 साल है 2023 से स्टार्ट होगा और 2 साल में ही मेरा लोन
फुल अमाउंट पे हो गया तो 25 विल बी माई लास्ट ईयर, उसके बाद मैं ये डिडक्शन अवेल नहीं करूंगा। अगर ये 10 साल हो गया तो जो 8वां साल रहेगा इट विल बी माई लास्ट ईयर फॉर डिडक्शन। सो ये है सेक्शन 80E। सो सेक्शन 80E है जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन होम लोन और सेक्शन 24A अगर तुम लोग ने ध्यान दिया रहेगा तो सिमिलर है और इंटरलिंक्ड भी है, तो ये थोड़ा और ध्यान दीजिए इस चीज पे। तो इसमें ऐसा है कि deduction is allowed only to homeowner having one house property on the date of sanction of the loan. The value of house property must be less than 50 lakhs and home loan must be less than 35 lakh. तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो मैंने लोन लिया है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें अभी मैं इंटरलिंक कैसे 24 से वो बताता हूँ कि जैसे मैंने बोला था कि मैंने होम लोन लिया है और मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो उसमें जो इंटरेस्ट का लिमिट था वो 2 लाख का था जो कि मैं वेव ऑफ कर सकूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरा पूरे साल का मिला के अगर मेरा इंटरेस्ट जा रहा है 2,50,000 तो मैं वहां पे 2 लाख का वेव ऑफ दिखा के यहाँ पे 50,000 का फिर से मैं इंटरेस्ट अवेल कर सकता हूँ डिडक्शन के लिए। तो ये है सेक्शन 80E। सो बेसिकली नाउ विल गो टू सेक्शन 80G। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पशन 100%, 50% ये लोग ने ऐसे दिया है। सो द वेरियस ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80G आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू इधर 50% और 100% और विद इन द रिस्ट्रिक्शन। तो 80G is basically divided in two halves, without limit and within the limit. Without limit is divided into further two more parts, that is 100% exemption and 50% exemption. तो 100% exemptions में है जो है वो मैं 2-3 एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि नेशनल डिफेंस फंड में हम लोग ने अगर डोनेशन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कर दिया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी ये कर दिया, और फिर स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स फंड के लिए नेशनल कल्चरल फंड में अगर डोनेशन कर दिया तो हम लोग को 100% तक का वहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर आते हैं 50% में विदाउट लिमिट में बात कर रहा हूँ। तो विदाउट लिमिट में 50% में सिर्फ 4 ही फंड है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, फिर राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ऐसे 4 फंड है। तो ये हो गया विदाउट लिमिट। और फिर विद इन द लिमिट में है वो उसके अंदर भी 2 ही अगेन डिवाइड है, जैसे कि 50% और 100%। यहाँ पे 6 टोटल फंड है जो कि बहुत सिंपल है। 100% और में 2 है जो कि फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक फंड, स्पोर्ट्स ओलंपिक फंड। और सेक्शन 80G में ही जो विद इन द लिमिट है उसमें अगर 50% वाला है तो उसमें 4 है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रूरल प्लेसेस, फिर डोनेशन इन चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओज, माइनॉरिटी इंटरेस्ट फंड, और जैसे और एक है मैं बोलूंगा वो भी। फिर इसमें अगर हो गया तो ये होता है सेक्शन 80G में। तो इसमें एक और बात है कि विद इन द लिमिट मतलब 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ऐसा है वो। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख तो उसमें से तुम लोग 10% तक का ही ये 6 फंड्स में तुम लोग डोनेशन कर सकोगे, और उसमें से तुम लोग को 100% और 50 एज पर द रेगुलेशंस तुम लोग को मिल जाएगा। सो अभी आते हैं सेक्शन 80GG, 80GGA, 80GGB और 80GGC। सो सेक्शन 80GG है जो कि इंपॉर्टेंट है अपने एज अ सैलरीड पर्सन के लिए। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने को HRA नहीं दे रहा है, दैट इज हाउस रेंट अलावेंस, अगर हम लोग को सैलरी में नहीं मिल रहा है और हम लोग रेंट पे रह रहे हैं तो 80GG के अंडर हम लोग को डिडक्शन मिलेगा। फिर आता है 80GGA जो कि हम लोग ने अगर साइंटिफिक रिसर्च के फंड में हम लोग ने डोनेशन कर दिया तो वहां हम लोग को डिडक्शन अवेल कर सकेंगे। फिर आता है सेक्शन 80GGB जो कि कंपनीज का है और हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आते हैं 80GGC में,
इसमें जो हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें अगर हम लोग ने डोनेशन कर दिया तो 80GGC का डिडक्शन हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, जो कि है 80QQB, 80RRB, 80TTA, 80TTB। सो 80QQB जो है वो है डिडक्शंस फॉर रॉयल्टी इनकम। इफ आई एम अ सैलरीड पर्सन और मेरा आई एम ऑथर ऑल्सो, तो जो मेरे को रॉयल्टी मिलेगी उसका मैं 3 लाख तक का डिडक्शन यहाँ पे अवेल कर सकता हूँ। 80RRB इज सिमिलर टू QQB, जैसे कि 80RRB में रॉयल्टी ऑन आर्ट, इन्वेंशंस, पेटेंट्स, ये सब में आता है। फिर आते हैं सेक्शन 80TTA। तो TTA में ऐसा है कि हम लोग जो भी अमाउंट हमारा सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसमें से हम लोग को बैंक इंटरेस्ट देता है, तो ₹10,000 तक को हम लोग इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ये अपन लोग के लिए, मतलब हम सब जो सैलरीड पर्सन है वो लोग ज्यादा ध्यान दे देना यहाँ पे सेक्शन 80TTA में। सो सेक्शन 80TTB सिमिलर लाइक TTA, लेकिन यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है ही शुड बी he should be senior citizen. yes, so thanks ओमकार, सीनियर सिटीजन। सो ये हो गया हमारे सेक्शंस। सो अभी आते हैं समरी में कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया। सो सेक्शन 80C, सेक्शन 80CC, सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80GG, सेक्शन 80G, सेक्शन 80EE, सेक्शन 80CC, सेक्शन 80DD, 80E, 80D, 80TTA। तो ये सब हमारा अभी हम लोग ने ये टॉपिक सब कवर किया है। सो अभी लास्ट स्लाइड में आते, देखते हैं किसका कितना ध्यान था। क्विज। सो मुझे बोलना, अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ ये कि विच सेक्शन इज अबाउट एजुकेशन लोन। कोई भी खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकता है। 80E। और ये रहा सही जवाब। अगर फंड्स अगर रिलीज किए ओमकार ने तो आपको प्राइज मिल जाएगा। तो दूसरा है विच सेक्शन अलाउज रिलीफ्स ऑन डोनेशन। बोलो गाइस, किसका ध्यान था कि नहीं था? मैं आंसर नहीं कर सकता ना। आई गेस मे बी मैं गलत रहूंगा क्योंकि बहुत सारे जीजी के अंदर बहुत सारे थे। सो 80GGC आई गेस। और ये गलत जवाब है। सही जवाब है 80G। उसमें मैंने बोला था कि जवाब ओहो वैशाली चैट में डाला। सो सेक्शन 80U दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी, वो किसको एप्लीकेबल है? अरे बोलो, ध्यान था कि नहीं था? फिजिकल डिसेबिलिटी वाला ना, एप्लीकेबल टू फिजिकली डिसेबल्ड। हाँ, बट आंसर क्या है, किसको एप्लीकेबल है? 40 to 80% फिजिकली, 80% डिसेबल्ड। नहीं, एक्चुअली ये जो 80U है वो टैक्स पेयर अगर खुद डिसेबल्ड रहा तो उसके लिए एप्लीकेबल है। मतलब उसका अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स, अगर स्पाउस, ये अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये सेक्शन में नहीं आएगा। अगर वो खुद डिसेबल्ड है तो 80U में आएगा। सो लास्ट क्वेश्चन इज डिडक्शन लिमिट फॉर सेक्शन 80C। ये तो स्टार्ट में किया था, किसी का तो ध्यान होगा। 1,50,000 आहे का? राइट, आपको भी प्राइज मिलेगा ओमकार के तरफ से। 3-4 लोकांनी आन्सर केले चॅट मध्ये पण।
Hello. Am I audible? Yes, you are. Yes. 1.5 lakh आहे ना ATC ला? हो. अच्छा, मी 1.50 ऐकलं. सॉरी, ती 1.5 बोलली का? 1.5 lakh is 1,50,000. काय अच्छा, बोलतोय तू अच्छा. प्रयाग? अरे सॉरी अरे सॉरी. Okay, hello. As we are done with the session, we are open for queries now. So you can ask your questions. खूप सारे आहेत लॉज वी करायला रिव्हिजन करायला लागेल Omkar, एकदा परत. Yeah, Omkar, yeah, I guess this meeting is for 40 minutes, right? yeah. So we started at 6, so it's almost 6:37. Can we start a new one? अरे ना मीटिंग I don't एंड think नाही it होणार will. 40 Yeah, मिनिट्स I don't think नंतर. it will be ended. So it's not an issue. Okay, fine. We can continue then. Hello, Yeah, yeah, am I audible? yeah. Yeah, so I think that there were too many concepts here, so it would be great if the PPT is shared. Yeah, sure. We'll share it. We'll share it in the group. Are all the participants RCTGC members? Yes, I guess. So we'll share it in the group. Okay, perfect. हॅलो जन्मेश, एक छोटासा डाऊट आहे, इफ यू डोंट माइंड. बोल ना. ते तू हे जे ATCचं तू पहिला सांगितलेलंस ना, ते 1.5 लॅकचं, ते डिडक्शन लिमिट. सो ते 20%, ते 10% सॅलरी आणि ते काय ते 20% ग्रॉस टोटलचं, ते थोडं सांगशील का परत? जन्मेश, क्वेश्चन कळालं का तुला? Hello, Dharmesh. I'll answer you, Prayag. Prayag, तुझं जो query आहे, so your query is under section 80 CCD. So अच्छा. section 80 CCD चे ना 3 parts आहेत. First हा. is section 80 CCD 1, ज्यामध्ये you as a employee contribute some amount to the national pension scheme by default. That gets deducted from your salary. Then there is section 80 CCD 2, which under the employer pays some part for your pension. So that is section 80 CCD 2. And third one, which Janmesh explained, was section 80 CCD 1B, which says that if you are contributing more than the prescribed limit, like the 10% which you said right now, if you are contributing over and above that, then you will be eligible for additional 50,000 deduction. So this was Okay, the entire section. Okay, thanks. Okay. Any other queries, guys? I know the session was bit heavy because काफी सारे sections है. But हम लोग ने काफी try किया to cut it and reduce it to a small PPT. But since we felt that all the sessions are somewhere or the other relevant, so that's why we had to include them all. So we'll share the PPT. That's not an issue. Goshali, you have raised your hand. You have any query? Yes, I do. Hi, guys. I just wanted to understand that when we are doing a CSR activity, that is a time when some companies बोलते that they'll give us the ATG certificate. I don't know whether this is genuinely relatable or no, but I just had this query that how does that work? They say that they will give us an ATG certificate. So how does So that if happen? you're talking about an individual or as a company? Even as a company, they give us, and even as an individual, if you've done some contribution, they Yeah. assure us that they will give us So the certificate. that is basically the proof that you have donated something. So that was under section 80Z only. So it's like so there were different sections if you remember. So one section is for companies. So for the companies who donate for the categories which were mentioned in that slide,
So you get that certificate, like the person whom you are donating to, suppose it's an NGO, then they should have that ATG certificate, that they should be certified by the government to accept that donations which are tax deductible. So only and Right. only if you give your money to them, then only you will be eligible for that deduction. Suppose if someone donates money to Rotary Club of Thane Green City, but we don't have that ATG certificate, so that donation won't be considered under the ATG deductions. So that is basically the significance of the certificate. Right, yeah, because actually he mentioned that if you provide only to government, like if for companies we didn't speak much. I was just little curious about it. Thank you so much. Thank you. Anytime, sir. Any other queries, guys? You can shoot your questions quickly because we'll have to close. We are already over time. Someone is मला posting फक्त एक chat. सजेशन आहे ओमकार. Yeah. म्हणजे जेव्हा क्वेरीज ना आन्सर करतो ना तेव्हा स्क्रीन सॉरी ती स्लाइड जर दाखवली ना तर थोडी रेफरन्सला हेल्प होईल. कारण Oh, अर्ध sure, sure, डोक्यावरनं sure. जातं. Sure. Next time पासून आपण करू. येस नक्की. थँक्यू. Okay, guys, we are holding for next 10 seconds. If we don't have any queries, then we'll close. Any questions, guys? Last 10 seconds. We are closing. Okay, so I guess there are no further questions. So we'll close this session. Thank you so much for joining the session. Please join the next session as well, which is on next Saturday. So we'll be learning something new, which is related to tax, which came in the current budget. So that is also very interesting and very important for all of you to know, because from now onwards, you'll have an option to select between two tax regimes, that is old and new.